LCR series circuit. LCR series circuit रे या नेमिंग अनुसार हमें यार सर्किट भी दे दियो लाइक L माने गोटे इंडक्टर, C माने गोटे कैपेसिटर, R माने गोटे रेजिस्टर. इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर जेतले सीरीज कॉम्बिनेशन में लागले हम तो कहले LCR सीरीज सर्किट हैला. देखो सीरीज एक्सेप्टर सर्किट बोली भी कहा जाए. एक्सेप्टर सर्किट माने ये गोटे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रो एसी को एक्सेप्ट करे. सपोज एठी हमें EMF देले E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t और करंट फ्लो होची लेट I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस फाइव. मते जाना नहीं फाइव हो जति जाना. लेट करंट I is equal to I0 sin omega t minus phi. एबे इंडक्टर अक्रॉस रे EMF, इंडक्टर अक्रॉस रे EMF केते ना EL, कैपेसिटर अक्रॉस रे EMF होची केते EC और रेजिस्टेंस अक्रॉस रे EMF होची ER. चलो मु लिखि परिबी नेट EMF अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ E is equal to ER plus EL plus EC. लिख परिबी. This is equation number 1. Then what is the value of ER? Current into resistance or R into I0 sin omega t minus phi. Equation number 2. Then what is the value of EC? EC is equal to or कितना हो Q is equal to हमें जानते हैं कितने CP. तब V is equal to Q by 6. तले this is equal to charge का मैं लिखि परिबा इंटीग्रेशन ऑफ I dt डिवाइडेड बाय हम आगे लिखि दोची चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस और चार्ज का मैं केते लिखि परिबा इंटीग्रेशन ऑफ I dt और this is equal to I होची I0 sin omega t minus phi. तले 1 by c of इंटीग्रेशन ऑफ I0 sin omega t minus phi. चले sin omega t minus phi इंटीग्रेशन कुछ कहते हैं माइनस cos omega t minus phi डिवाइडेड बाय ओमेगा और EC is equal to I0 डिवाइडेड बाय ओमेगा c cos omega t minus phi. sin omega t का इंटीग्रेशन रखो ना माइनस. कल दिस इज इक्वल टू EC. इक्वेशन नंबर 3. Now what is the value of EL? EL is equal to inductor across the EMF equal to L into di by dt. चले L into d by dt of I0 sin omega t minus phi बा आगे लिखते हैं ओमेगा L I0 cos omega t minus phi. इक्वेशन नंबर 3 4. चलो
using equation 2, 3 and 4 in equation 1, using equation 2, 3 and 4 in equation 1, E is equal to कहते हैं अब first ER equal to R I0 sin omega t minus phi, I0 into R sin omega t minus phi plus EL कितना चाहिए omega L into I0 cos omega t minus phi minus तापर टर्म जो प्लस थिला जे जोइरा एसी टा माइनस ही होची नेगेटिव होची हम माइनस डायरेक्ट होची 1 by omega c I0 cos omega t minus phi हला एबे I0 को होल लू कॉमन ले आछि r sin omega t minus phi plus এই জিনিসটা কমন নিয়ে আসছি ওমেগা l minus 1 by omega c into cos omega t minus phi এদিকে নেক্সট এটা ইকুয়েশন নম্বর 5 জি let omega l minus 1 by omega c is equal to z sin phi and r is equal to z cos phi এটা ইকুয়েশন নম্বর 6 দিও এটা ইকুয়েশন নম্বর 7 6 और 7 को 5 रे हमें जदी यूज करिबा चलो E is equal to करते पहले I0 into Z cos phi sin omega t minus phi plus Z sin phi into cos omega t minus phi चलिए को फॉर्म को पढ़े असला Z जदी कॉमन नहीं आसीबा cos a sin b plus sin a cos b फॉर्म करेला तब दिस इज इक्वल टू I0 into Z cos a sin b sin a cos b sin a plus b omega t minus phi plus phi और Z into I0 sin omega t तब E ର वैल्यू ऑलरेडी हमें कितने निकले E0 sin omega t this is equal to I Z into I0 sin omega t तब d को sin omega t कैंसिल कर परिवा और √2 डिवाइड कर दो बीटा साइड में √2 डिवाइड कर दो ताले हमें लिख परिवा this is equal to E RMS equal to Z times I RMS चलिए Z is equal to कितने हो E RMS divided by I RMS चलिए E RMS होची EMF I RMS होची current EMF divided by current is equal to some resistance चलिए obviously Z टा कौन रिप्रेजेंट करूची जोटा opposition towards the current बा resistance को ही रिप्रेजेंट करूची बट ये रेजिस्टेंस होची बा ये अपोजिशन होची ग्रुप ऑफ एलिमेंट मानकर अपोजिशन ताकू रेजिस्टर रेजिस्टेंस बोली कोई परिबानी किबा कैपेसिटर रिएक्टेंस किबा इंडक्टर इंडक्टेंस बोली भी रिएक्टेंस बोली भी कोई परिबानी तले ग्रुप ऑफ एलिमेंट मानकर जो अपोजिशन আছে
ताकू कहै जाय इंपेडेंस हला ताकू कोन कहै जाय इंपेडेंस बोली कहै जाय Z is called as impedance of the circuit. हेलो Z ର value calculation करियो equation 5 और 6 और 7 ରୁ रहे from equation 6 and 7 squaring and adding equation 6 and 7 तल केते जीवो z square is equal to केते हबो ओमेगा l बा r square plus ओमेगा l minus 1 by ओमेगा c whole square और z is equal to केते हबो square root of r square plus omega l minus 1 by omega c whole square. This is the expression for z. एटा को इक्वेशन नंबर 7 दे दिला एटा को 8 दे दियो एटा ला 9 हला z रे एक्सप्रेशन टाइम रे हम केतेटा अननोन टर्म थिला z तो अननोन थिला 5 अननोन थिला ये 5 टा कहां से तो समान थिला ए 5 से तो ए जो 5 निकले को 5 निकले करंट रो एक्सप्रेशन कोडे थिला I = I0 sin ओमेगा t -5 ताले फेज डिफरेंस थिला ताले कुछ ए 5 रो जदी कैलकुलेशन केमति करिवा इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 7 tan phi is equal to omega l minus 1 by omega c whole divided by r और phi is equal to tan inverse omega l minus 1 by omega c divided by r. It is a point expression, but this is the phase difference. So the phase difference between EMF and current depends on reactance of inductor, capacitor and resistor. हेलो अच्छा ए z को यदि वेक्टर फॉर्म रे एक्सप्रेस करियो z को यदि वेक्टर फॉर्म रे एक्सप्रेस करियो बात हम को वेक्टर इंपेडेंस नहीं ना वेक्टर इंपेडेंस डायग्राम z को हमें कौन को इंपेडेंस हैला then it is the opposition offered towards the AC to a due to a group of circuit element जो opposition दियंती ताकि impedance होई पाए यार ऐसा यूनिट भी से ओम ये भी से जोड़े कॉम्प्लेक्स नंबर याकु जदि वेक्टर फॉर्म रे एक्सप्रेस करबा suppose this is the resistance axis r ऊपर रहेला ओमेगा l बा xl इंडक्टिव रिएक्टेंस जस्ट अपोजिट होची कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस तले इधर होची 1 by ओमेगा c तले ओमेगा l minus 1 by ओमेगा c केते रहइबो दिस इज ओमेगा l minus 1 by ओमेगा c तले ओमेगा l minus 1 by ओमेगा c को जदि गोटे वेक्टर रे रिप्रेजेंट करबा r को जदि आउट वेक्टर रे रिप्रेजेंट करबा यांकर रिजल्टेंट वेक्टर कोन रहइबो एटा रिजल्टेंट वेक्टर दिस इज z r को जो एंगल तैयारी करियो दिस इज इक्वल टू phi तले tan phi is equal to omega l minus 1 by omega c divided by r reduced तले obviously this is correct आओ ए phi रो जदि हमें cos phi कैलकुलेशन करियो
this is equal to base by hypotenuse r divided by z बा मु लिखि परिबी cos phi is equal to r divided by omega l minus 1 by omega c whole square plus r square the square root এটা হলো cos phi এই cos phi টা কাই কে লিখলি this is called as the power factor এটা কোন দি power factor cos phi is called as power factor ହେଲା তাহলে या पूर्व गोटे एक्सप्रेशन पाइथिले E is equal to Z times I और I is equal to E divided by Z बोली लिख पारी अब ना होगा यदि I is equal to E by Z हुए मैक्सिमम करंट केतोले तो ये न तो कांस्टेंट मैं I मैक्सिमम केतोले हो यदि Z मिनिमम तले Z तो वैल्यू देते I will be I max if Z going to Z will but the value of Z is equal to r square plus omega l minus 1 by omega c whole square ताले Z मिनिमम हेले कोन हो r तो केबे 0 ही जीवनी ताले एही पार्ट को हम 0 करिबे ताले Z minimum will be occur Z will be minimum if omega l minus 1 by omega c is equal to 0 or omega square equal to 1 by lc or omega is equal to square root of lc. Equation number 11. Omega equal to 2 pi f. बट एई कंडीशन रे गोटे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आसीबो जो फ्रीक्वेंसी रे ओमेगा इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एलसी हो बिकॉज़ ओमेगा इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल और सी तो चेंज ही परिबोनी तले ए 1 बाय रूट स्क्वायर रूट ऑफ एलसी से तो समान हेले गोटी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से तो समान हो तले एटा तुम f0 बोली लिखि दउछ दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एलसी देन f0 इक्वल टू केते हो 1 divided by 2 pi into square root of LC. This frequency of AC at which Z will be minimum and the current will be maximum. This frequency is known as resonant frequency. तो वाजा रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी तले रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी रे सर्किट का को बोले एक्ट करे ओमेगा एल माइनस 1 में ओमेगा सी इक्वल टू 0 हो गला तले इंडक्टर और कैपेसिटर रे किछि इफेक्ट रहिबो केवल कहार इफेक्ट रहिबो रेजिस्टेंस इफेक्ट तले एट रिजोनेंट कंडीशन और एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी द सर्किट LCR सर्किट बिहेव्स एज ए रेजिस्टिव सर्किट at resonant frequency
the LCR circuit behaves like a resistive circuit. ହେଲା तले जदि गोटे ग्राफ प्लॉट करियो रीजनल फ्रीक्वेंसी और करंट भीतर जदि ग्राफ प्लॉट करियो बा फ्रीक्वेंसी और करंट भीतर जदि गोटे ग्राफ प्लॉट करा जाय सपोज दिस इज करंट एंड अदर फ्रीक्वेंसी याको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व बोली कहा जाय कौन कहा जाय फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व दिस कर्व विल बी like this ताने at low frequency तो लो अछि सेत बळे करंट भी कम रहिबो फ्रीक्वेंसी तो बढ़िला करंट धीरे धीरे ग्रेजुअली कोन हो इंक्रीज करी चलिबो बड़े पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रे जोडो का में रीजनल फ्रीक्वेंसी बा f0 बोली कहउछे एडी करंट कोन हि दिबो मैक्सिमम हो बा आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी f0 ठार जदि आउट फ्रीक्वेंसी पूरी बढ़ेबा कोन हो पूरी करंट डिक्रीज कर लो फ्रीक्वेंसी रे अधिका पोजीशन किए दिए कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी रे अधिका पोजीशन किए दिए इंडक्टर किंतु गोटे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अछि जो फ्रीक्वेंसी रे इंडक्टर और कैपेसिटर आ आदो पोजीशन दियंती नाही दी जन नेट पोजीशन ता कैंसिल हो जाय सेट एट से फ्रीक्वेंसी रे कोन कहा जाय रीजनल फ्रीक्वेंसी तले रीजनल फ्रीक्वेंसी रो तळो को जदी जीव ताने लोअर देन रीजनल फ्रीक्वेंसी और हायर देन रीजनल फ्रीक्वेंसी सेठी कोन हम दीटा फ्रीक्वेंसी रे गोटे करंट हमें पाई पाई फॉर एग्जांपल एठी जदी गोटे गाड़ी टाणी ई गोटे करंट एठी भी आसीबो ताने लोअर करंट लोअर फ्रीक्वेंसी भी आसीबो हायर फ्रीक्वेंसी भी आसीबो सपोज हमें मैक्सिमम करंट रे 70% करंट होचे एई करंट को हमें कहबा दिस इज द 70% ऑफ I max एटा केते बेला कर हो ना गोटे FL रे कर हो FU रे करो FU च अपर फ्रीक्वेंसी FL च लोअर फ्रीक्वेंसी जो लोअर फ्रीक्वेंसी रे 70% ऑफ मैक्सिमम करंट फ्लो हुए दैट लोअर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हला ए FL को में कोन कहबा FL होची FL कोन होएगा 70% ऑफ I max हमें पाओ याको कोन कहा जाए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बा LCF को लेकर और जो अपर फ्रीक्वेंसी 70% ऑफ I max हमें पाओ that is called the upper cut off frequency but the QCF बोली बोल हला difference between this frequency range or range of this frequency beta is equal to FU minus FL याको कह जाय कोन बैंडविड्थ upper cut off frequency minus lower cut off frequency equal to bandwidth हला तले कर्व टा शार्प हो कि ब्लॉन्ट ही जो कहा
शार्प हो कि ब्लॉट हो, कहां पर डिपेंडेंट? बैंडविड्थ हो। बैंडविड्थ जदि डिक्रीज करिवो कर्व शार्प हो, बैंडविड्थ जदि इंक्रीज करिवो कर्व ब्लॉट हो। हला तले शार्पनेस ऑफ दिस रिजोनेंट कर्व बात अगु कहते क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस और क्वालिटी फैक्टर बा क्यू फैक्टर बोली भी तक कहते क्यू बोली कहते इक्वल टू कहते रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। एक कहते क्वालिटी फैक्टर बा शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। और एक तार गोटे डेफिनेशन अछि q इज इक्वल टू आउट डेफिनेशन कौन एट रिजोनेंट कंडीशन द EMF across either inductor or capacitor divided by EMF across resistor। ताने EF divided by ER और EC divided by ER। कहेंगे रिजोनेंट कंडीशन में EL जहां EC भी से या EL जगह में कितने लेके परिवा एट रिजोनेंट कंडीशन EL इज इक्वल टू कहते हैं करंट इनटू केते बाबा करंट का मैक्सिमम करंट फ्लो होची I0 बोली नहीं होची इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय करंट इनटू रेजिस्टेंस। तले क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू कितना होगा XL डिवाइडेड बाय R। XL का ओमेगा L डिवाइडेड बाय R बा ओमेगा रो वैल्यू में जाने कहते हैं रिजोनेंट कंडीशन में 1 divided by square root of LC into L by R। तले रूट L एठी कैंसिल हो जीवो तले 1 by R times square root of L by C। This is quality factor। हला EC को पुट कर भी कर पाए EC सेम से एक दिन से पाए 1 by R square root of L by C। तले क्वालिटी फैक्टर बीटा 350 F0 by FU minus FL out of 1 by R square root of LC। हला एक तो शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस बा क्वालिटी फैक्टर बोली कहै छै। हला नेक्स्ट तापर होची पावर इन एलसीएस। पावर जेतोले कैलकुलेशन करा जाय पावर P इज इक्वल टू कहते EMF इनटू करंट। तब जो बताइए पावर EMF का हमें कौन है इंस्टैंटेनियस EMF एटा इंस्टैंटेनियस करंट तले पावर टा भी इंस्टैंटेनियस तले इंस्टैंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टैंटेनियस EMF इनटू इंस्टैंटेनियस करंट। तले EMF रो वैल्यू हमें कितने दिले E0 sin ओमेगा t माइनस फाइ सॉरी ओमेगा t I रो वैल्यू कितने दिले I0 sin ओमेगा t माइनस फाइ एटा I पे दिले एटा पाइथिले की the instantaneous power is equal to E0 into I0 sin omega t into sin omega t minus phi। ताले ये कौन बोलिबा sin c plus sin t न सॉरी
sin c into sin d पळे ताले गोटे 2 डिवाइड कर दो 2 गोटे मल्टीप्लाई कर दो 2 sin c into sin d ताले फॉरवर्ड कोन रहइबो e0 i0 डिवाइडेड बाय 2 एटा केते हिजिबो cos केते cos a minus b cos a minus b माने omega t minus omega t cos phi नेक्स्ट तापरे माइनस cos 2 omega t minus phi এটা হলো ইনস্ট্যান্টানিয়াস পাওয়ার যদি এভারেজ ক্যালকুলেশন করি পাওয়ার এভারেজ পাওয়ার এতে या बीच में कुछ भी एवरेज के कैलकुलेशन करा जे मैं ऑलरेडी कह दी छी एवरेज कैलकुलेशन के लिए कोन एवरेज माने फुल सर्किट का फुल साइकिल ऑफ एसी प्रोग्राम में कैलकुलेशन करियो cos 2 omega t minus phi केते हिजो सर्कुलर फंक्शन when average is calculated over circular function over its full cycle average केते हिजो 0 तले ई पार्ट का मैं खाली कैंसिल कर देबे तले एवरेज पावर इक्वल टू केते होगा e0 i0 by 2 into cos phi और एवरेज पावर equal to e0 by root 2 into i0 by root 2 into cos phi by average power is equal to ERMS into IRMS into cos phi चले गोटे सर्किट रे एलसीआर सर्किट रे बा एसी सर्किट रे एवरेज पावर केतेला ERMS into IRMS into cos phi ए cos phi टर्म को कोन कहले पावर फैक्टर पावर फैक्टर बोली कहले हला जदि हम ओटे प्योरली इंडक्टिव सर्किट नबा की प्योर कैपेसिटिव सर्किट नबा प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट फॉर a pure inductive or pure capacitive circuit phi is equal to कितने plus minus pi by 2 हबनी गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट रे फेज डिफरेंस केते रहउतिला पाई बाय 2 कैपेसिटिव सर्किट रे पाई बाय 2 फेज डिफरेंस रहउतिला तले cos phi केते रे केते हिजिवो 0 तले एवरेज पावर इक्वल टू तने प्योर इंडक्टिव सर्किट किबा प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे पावर एवरेज पावर इज इक्वल टू 0 तमने गोटे इंडक्टर भीतर अल्टरनेटिंग करंट देले गोटे प्योर इंडक्टर ता भीतर जदि अल्टरनेटिंग करंट दबा पावर 0 माने वाटर नहीं करंट पास करू किंतु वाटर नहीं माने हीट जनरेट करबा रहिबो नहीं केवल रेजिस्टिव पार्ट में हीट जनरेट करे नले आदर हीट जनरेट करबो नहीं प्योर इंडक्टिव सर्किट कथा हम पूछी से केवल इंडक्टेंस थी जो रेजिस्टेंस नथि बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कॉइल अछि माने तार रेजिस्टेंस रहइबो हैला ताले प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे जो करंट फ्लो हुए से करंट रो पावर 0 देयरफॉर दिस करंट इज नोन एज वाटलेस करंट the current through pure inductive circuit or pure capacitive circuit
have no power, so it is called as wattless current. बुझेला देखो हमें वाटलेस करंट बोली है। अच्छा गोटे मैग्नेटिक फील्ड भीतर जदि गोटे कॉइल रोटेट करे, कॉइल रोटेट करछि, कॉइल रोटेट करछि माने कोन करछि ना मैग्नेटिक फील्ड को प्रत्येकटा मोमेंट रे डिफरेंट डिफरेंट एंगल करछि, ठीक ना। देख सपोज एटा गोटे मैग्नेटिक फील्ड एन और एस या भीतर गोटे कॉइल रोटेट करछि, एबेला गोटे कॉइल रोटेट करछि, ये रोटेट करछि, तले ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रत्येकटा मोमेंट रे कोन करछि डिफरेंट डिफरेंट एंगल करछि। हियर द एंगल बिटवीन दिस एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज a function of time. If this loop is rotated with an angular frequency omega, then the angle between area vector and magnetic field vector theta is equal to omega into t. Then flux linked with that conductor, sorry, so what are you doing? Flux linked with that conductor phi is equal to kete jibo b a cos omega t, theta जगह लिखि दो omega t हैला। तले t जेतोळे चेंज होउची phi भी चेंज होउची, तले phi जदि चेंज होबो तले कोन होबो अकॉर्डिंग टू Faraday's law d phi by dt is equal to induced EMF. चले rate of change of flux is equal to minus of E. चल E is equal to this is equal to d by dt of BA cos omega t और माइनस E is equal to कहते BA कांस्टेंट cos ओमेगा t का डेरिवेटिव कहते माइनस ओमेगा sin ओमेगा t माइनस ओमेगा sin ओमेगा t। चले माइनस माइनस भी गुड कैंसिल हो गला, E is equal to कहते हैं BA ओमेगा sin ओमेगा t। देखो B कांस्टेंट A कांस्टेंट जदि रोटेशन रो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हुए ओमेगा भी जदि कांस्टेंट हो जाए तले E is equal to लिख देबी ना E0 sin ओमेगा t बोली एंड इज सिंस E0 is equal to BA ओमेगा। तले गोटे मैग्नेटिक फील्ड भीतर जदि गोटे कॉइल रोटेट करे से कॉइल रे कॉइल रे दीटा एंड रे कोन जनरेट हुए अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट हुए, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट हुए। तरे ईएमएफ को बाहर करिवा पे हमें कोन करिवा दीटा स्लिप रिंग लगे देबा, स्लिप रिंग सहित दीटा कार्बन ब्रश रहिबो हैला। आउटपुट हमें नहीं करियो एवडा कंस्ट्रक्शन बा ईएमएफ रे आमे जो पाइले एटी अल्टरनेटिंग करंट पाइले ई कंस्ट्रक्शन नु पाइले ई कंस्ट्रक्शन को कोन कहते
କାହାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ जनरेटर ହେଲା ଏଠୁ କୁହାଯାଏ ଏସି जनरेटर तले जनरेटर रो हमें जनरेटर कोन हैला गोटे लूप मैग्नेट गोटे करंट कैरिंग लूप जेतबळे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कला सेतबळे हमें कोन पाइले अल्टरनेटिंग ईएमएफ पाइले बा अल्टरनेटिंग करंट हैला एरा सेपे कहते हैं एसी जनरेटर हैला यार ग्राफ E = E0 sin ओमेगा t को नहीं ग्राफ प्लॉट कर फिर हैला तब नेक्स्ट क्लास पढ़िबा ट्रांसफार्मर एंड इट्स प्रोसेस।